Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Atif Nawaz. I welcome you all on my YouTube channel English Literature Experts. आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक का कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस में एक पोइम ली गई है एंड द टाइटल ऑफ दैट वेरी पोइम द सिक रोज. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी पोइम. ओके, दिस पोइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कलेक्शंस, तो इसके कलेक्शन से ये जो पोइम है ये इसके कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस से ली गई है. ओके, title as I earlier told you, the sick rose, and if you talk about the tone of this very poem is very sad, as it is looking from the title the sick rose. Okay, though, so the tone of the poem is very sad. Structure of the poem is that total stanzas जो हैं वो 2 हैं. This is very short poems and allegorical poem. Okay, and what is allegorical? By allegorical here we means the extended metaphor has been used here. So the poem is comprises of 2 stanzas and the number of total lines is 8. So it means that each stanza is bearing 4 lines. Okay, so in this video we will be looking at the title of the poems, the critical appreciation of the poems, and we will also discuss this very poems by line explanations. So the poem is something like that. O rose, thou art sick. The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy, and his raw secret love does thy life destroy. Okay, so I earlier told you कि ये जो poem है ये 2 stanzas पर consist है, मुश्तमिल है. तो each stanza is bearing 4 lines. तो पहला stanza जो है this is a very allegorical poem. Okay, an extended metaphor has been used here. A very deep lines has been used. Okay, वो कहता है, O rose, thou art sick. O rose, a personification. A rose is being personified with a man. Okay, in the first stanza we will come to know about the circumstances and the environment. ठीक हो गया, टाइम किस किस्म का है, कौन सा टाइम है. And in the next stanza we will come to know about the gender of the character, the gender of that very person. Okay, so stanzas are argumentative in this very size, in this very form. अगर हम कहें कि stanza जो हैं वो बहुत ज़्यादा argumentative हैं, हमें stanza को देख कर ही चलना पड़ेगा. O rose, फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो personification यूज़ की गई है. O rose, a rose is being personified. O rose, thou art sick. Art here mean are, a very archaic word. O rose, thou art sick. ओ गुलाब के फूल, क्या तुम बीमार हो. The invisible worm that flies in the night in the howling storm. This is the first stanza. We will be looking at each lines. The invisible worm. Okay, a worm, an insect that is invisible. Okay, again a personification has been used. Personified, a worm is being personified. In the next stanza we will come to know about the gender. ठीक हो गया. तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे, एज अर्ली टोल्ड यू के स्टैंजास जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव हैं. दैट फ्लाइज इन द नाइट, एक वार्म है. और रोज द आर्ट सिक्स, पहली लाइन में हमें जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है एक रोज से. नेक्स्ट लाइन, द इनविजिबल वार्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म. लुक एट द लाइन्स. इन द नाइट, नाइट इस किस्म का टाइम जिसमें हमें कोई देख नहीं सकता. ओके, that flies in the night in the howling storm. howling storm इस किस्म का तूफान, इस किस्म का झक्कड़ जिसमें बहुत ही ज़्यादा शोर हो. 2 इंसिडेंट्स, 2 टाइम्स जो हैं हमें जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए गए हैं. इन द नाइट, इन नाइट टाइम नो वन कैन सी यू. इन द howling storms, इस किस्म का झक्कड़, इस किस्म का तूफान जिसमें इतने ज़्यादा शोर होता है कि नो वन कैन हेयर यू. ओके, दिस इज़ द सर्कमस्टांसेस. ये हालात देखें, ये मतलब सिचुएशन देखें, किस किस्म की सिचुएशन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है. एक रोज़ जो है वो सिक है. किस जगह पर सिक है? द इनविजिबल वार्म. कौन सा वार्म? एक इनविजिबल वार्म, एक सफोकेटिंग इंसेक्ट जो है. इसको हम सफोकेटिंग किस लिए कह रहे हैं? इन द नेक्स्ट स्टैंजा वी विल कम टू नो. द इनविजिबल वार्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म. एक इनविजिबल वार्म है जो ना दिखने वाला कीड़ा है. दैट फ्लाइज, जो फ्लाई करता है. इन द नाइट, शाम के वक्त, रात के वक्त. इन दैट वेरी टाइम नो वन कैन सी. ओके, इन द हॉलिंग स्टॉर्म. हॉलिंग स्टॉर्म में भी, झक्कड़ में, तूफान में, शोर व गुल में, इस किस्म के टाइम में जिसमें कोई सुन नहीं सकता.
Look at the second stanza. Has found I out thy bed of crimson joy and his dark secret love. His, now look at the line, a gender is being introduced. Gender कौन है? Male है. फर्स्ट स्टैंजा में हमें टाइम बताया गया है कि एक रोज जो है वो सिक है, एक सिक रोज है, उसके ऊपर एक इनविजिबल वार्म जो है वो उड़ता है, किस किस्म किस टाइम पे? शाम के वक्त, रात के वक्त, और इन द हॉलिंग स्टॉर्म, इस किस्म के हॉलिंग स्टॉर्म में जिसमें कोई सुन नहीं सकता. हैज फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय. व्हाट इज क्रिम्सन जॉय? क्रिम्सन अ वेरी विविड रेड कलर. ओके, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो स्टेट ऑफ बीइंग एम्बेरसमेंट. ओके, जब हम बहुत ज़्यादा एम्बेरस होते हैं, शर्मिंदा होते हैं किसी चीज़ से, तो हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है. ठीक हो गया. एंड हिज डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय. तो नेक्टर जो है इस पोइम की जो समरी है, सरफेस पे बहुत ही सिंपल लाइंस हैं कि एक रोज़ है, उसके ऊपर एक इनविजिबल वार्म जो है उसके ऊपर बैठता है, उसकी सारी जो खूबसूरती है, उसकी लाइफ जो है, उसका डार्क सीक्रेट लव जो है, उसकी सारी ज़िंदगी जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. अगर सिंपल सा मीनिंग है कि मतलब एक गुलाब का फूल है, एक रेड कलर का फूल होता है, उसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट बैठ जाता है तो उसकी वो जो इंसेक्ट होता है उसकी लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ लिटरल मीनिंग. सरफेस पे जो मीनिंग है वो यही है, सिंपल है. लेकिन दिस वेरी पोइम इज़ वेरी एलिगोरिकल एज अर्लियर टोल्ड यू. तो ये जो जेस्चर है इन द नेक्स्ट स्टैंजा, एज वी हैव कम टू नो दैट इन हिज डार्क सीक्रेट लव, हिज मेल की बात कर रहा है, और अ रोज इज बीइंग पर्सनिफाइड विद अ फीमेल. ठीक हो गया. एक इस किस्म का इंसान, ठीक हो गया. दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी सूटेबल इन दिस वेरी प्रेजेंट इरा. अगर हम प्रेजेंट इरा की बात करें तो ये प्रेजेंट इरा में ये जो एग्जांपल है ये सूटेबल है. ठीक हो गया. क्योंकि जिस किस्म का आज इन्वायरमेंट चल रहा है, रेपिस्ट केस चल रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कल्प्रिस्ट हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये अब इस दौर में चल रही हैं. मेल फीमेल अ क्लास डिफरेंस जो है वो पीक पर आ चुका है. ठीक हो गया. तो मेल और फीमेल जो है आपस में ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस किस्म के हम कनेक्शन को इस पोइम से हम कंपेयर ज़रूर करेंगे, और कंपेयर करना भी चाहिए क्योंकि ये भी पोइम है इस हिसाब से है. तो नेक्स्ट स्टैंजा में हमने ये पढ़ा है कि हैज़ फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय. दाई you, okay, a very archaic word, and the last line, does thy life destroy thy your. ठीक हो गया. उसने तुम्हारा जो बेड है क्रिम्सन जॉय का, तुम्हारी खूबसूरती का, तुम्हारी एम्बेरसमेंट का, तुम्हारी जो ये जो आपके ऊपर आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, क्रिम्सन जॉय को अगर हम देखें वेरी डीप लाइंस तो इमोशंस भी कहते हैं, एन इमोशनल स्टेट. अगर एक औरत जो है अगर वो चेस्ट है, शी इज़ नॉट अनचेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्जिन है, अगर चेस्ट है तो वो जो है एम्बेरस हो सकती है, एम्बेरसमेंट हो सकती है. अगर उसका जो एम्बेरसमेंट है, अगर उसका फाइंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जो एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और मेल का जो डार्क सीक्रेट लव है किसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा? डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, एक फीमेल की लाइफ को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा. तो ये इस किस्म की हम पोइम को अगर एलिगोरिकल स्टेट में लें कि वो कहता है कि ओ रोज दाउ आर्ट सीक, एक इनविजिबल वार्म है, एक इनविजिबल मेल है जो किस टाइम? रात के वक्त शिकार को निकलता है, और एक हाउलिंग स्टॉर्म में शिकार को निकलता है. रोज़ जो होता है वो कहाँ पे? खूबसूरत रोज़ जो है आपको किसी भी जगह पर मिल जाएगा, तो सेफ़ प्लेस में नहीं होता. तो इसी तरह फीमेल जो है वो सेफ़ प्लेस में नहीं होती, लेकिन उसकी जो टाइमिंग है वो नाइट है और हाउलिंग स्टॉर्म है. तो जब भी कभी वो चाहे रेप कर सके या जो कुछ भी करे उसके साथ वो कर सकता है. हैज़ फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज डार्क सीक्रेट लव विल डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय. उसका जो डार्क सीक्रेट लव है, उसके जो लस्ट है, वो आपको अनचेस्ट भी कर सकता है. डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. Okay, so that is all for today. We will be discussing the next poems from this very collection, the Song of Innocence and Experiences. Till that, thanks for watching.